Good morning, ma'am. Good morning, Beta. Good morning. How is everyone doing? Great, ma'am. That's very good. Enjoying the chill weather outside, huh? Yes, ma'am. Okay. Class, we are going to, today I'll be sharing a sample question paper with you all, right? Which is released on the official site of CBSE. So you will come to know that what exactly will be the pattern of your second term examination. And moreover, news is also there that your first term results are also to be declared, right? Yes, ma'am. Hmm. So this is the sample question paper that I have received, okay? Ma'am said 13 questions as well. जी बेटा Ma'am said 13 questions as well. हाँ क्योंकि बेटा 40 मार्क्स का पेपर है ना and you are given 2 hours. Yes, ma'am. हाँ ठीक है तो all those who are there in the class they can read the general instructions silently by themselves and then I'll ask you certain things about it, okay? Read? Yes, ma'am. Read. Read? Okay. So Akshat will tell what does it says. And it says question number 1 to 5 contains 2 marks each, and we have to not exceed the words value of We don't have to exceed the words Hmm. of 40 ma'am 40 words. Okay. It says that we don't have to exceed for question number 1 to 5. See, in your previous classes, you know what? Is Angad not there in the class? Is Angad not there in the class? No, ma'am. Wait, let me take him. Let me take him. And somebody is entering with the name. What do they do? I don't understand. Is 7279 CFE? Who? What is this? Who is this class? Do you know? No, ma'am. No, ma'am. Chaliye, so I will remove her. Fine. Okay.
So see, till previous years, whatever the question paper was, it said that the student has to attempt, like there were 8 questions for 1 marks as very short answers, right? Very short answer type questions. But now this time you are given 5 very short answer type questions which carries 2 marks each. तो 2 marks each का मतलब क्या हुआ? पहले word limit होती थी 15 words, not more than that for 1 mark question. Now they have exceeded that it should not be more than 40 words. ठीक है? आप 35 लिखोगे तो भी चलेगा, पर 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए. I hope this is clear to everyone. Yes, ma'am. है ना? Okay, Angad, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, fine. Then B question says, B section says that 6 to 8, that means 3 questions are there which carries 3 marks each and the word limit should not exceed 80 words. जैसे पहले जो ये 3 marks questions आते थे बेटा, पहले ये आते थे 11 questions आते थे and वही same word limit होती थी but number of questions were more. अब क्योंकि it is 40 marks question, तो इन्होंने क्या करा है, इसको confine कर दिया है, छोटा कर दिया है. ठीक है? Right? Yes, ma'am. मैम अगर हमने मैम वर्ड्स की लिमिट्स मैम एक्सीड कर दी तब क्या होगा? देखो बेटा, ऐसा होता है ना कि कोई दिक्कत होती नहीं है सच, पर आप एक्सीड नहीं कर पाओगे क्योंकि जो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं ना, वो आप एक लिमिटेड नंबर में ही लिख पाओगे उसका आंसर. ठीक है? ओके मैम. हाँ, पर कोशिश ये करो कि जितनी वर्ड लिमिट दी है उससे ज्यादा एक्सीड ना करो. जैसे आप जब भी आंसर्स प्रिपेयर करते हो अपने, तो मेक इट 70 वर्ड्स, 75 वर्ड्स, तो वो अपने आप जो है आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करेगी. है ना? Yes, ma'am. हाँ. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ. Yes, ma'am. अब हम देखो, क्योंकि हमारा देखो बेटा सारा सिलेबस हमारा खत्म हो गया है. सो नाउ आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस लाइक दिस ओनली. ठीक है? इसी तरह से हम आपको पेपर डेली दिया करेंगे, उसको आप सॉल्व करो. एटलीस्ट आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी वर्ड लिमिट को कंट्रोल रखने की और ये चीज देखने की कि भाई किस तरीके से आंसर्स फ्रेम किए जाते हैं. राइट? राइट क्लास? Yes, ma'am. चलिए. सेक्शन सी कहता है 9 and 10 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. मतलब पहले जो 5 क्वेश्चंस आते थे 5 मार्क्स के, सॉरी 6 क्वेश्चंस आते थे जो 5 मार्क्स के, अब उन्होंने उनको केवल 2 में कंफाइन कर दिया है और वर्ड लिमिट का 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक? 120 का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपना आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, लेट इट बी ऑफ 110 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट. और अगर आप 110 का प्रिपेयर करते हो और 115 भी लिख देते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक? Okay, ma'am. देन 2 क्वेश्चन. हाँ, बोलो बेटा. देन देर आर 2 questions. देन देर विल बी 2 questions जो कि वो कहता है कि आपके जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. 2 पैसेजेस मिलेंगे आपको, उन पे बेस्ड जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है? 2 क्वेश्चंस ईच. ठीक? और अकॉर्डिंगली मार्क्स का सेग्रीगेशन है. ठीक? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. देन कम्स द मैप वर्क. पहले मैप वर्क 6 मार्क्स का आता था, पर अब इन्होंने क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर रह गया तो इन्होंने मार्क्स वो भी कम कर दिया है. 2 ज्योग्राफी से आएंगे और 1 हिस्ट्री से आएगा. पहले हिस्ट्री से 2 आते थे, ज्योग्राफी के 4 आते थे. ठीक है? 6 मार्क्स का होता था, बट अब इन्होंने कम कर दिया है. अब कर दिया है 3 ज्योग्राफी एंड 1 हिस्ट्री. क्लियर? 2 ज्योग्राफी, Yes, ma'am. 2 ज्योग्राफी एंड 1 हिस्ट्री. 3 मार्क्स का हो गया ये मैप. ठीक है? वो कहता है कि भाई ओवरऑल पेपर में काफी चॉइसेस दी गई हैं. ठीक है? अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस क्लास? जस्ट रीड. Shikhar Shah, will you read? Yes, ma'am. Read out. How did the non-corporation movement unfold in this city and towns of India? क्या कॉर्पोरेशन नहीं है, नॉन कोऑपरेशन. Cooperation.
Yes, ma'am. Anyone for this answer? Srishti, do you know this answer? Yes, no one for this answer. अक्षत, आपको याद है ये आंसर? आर्यन, भूमिका, इशिका? बताइए. नो? No, ma'am. But then why is it so? Huh? Ma'am, middle class participation. Very good. Middle class participation. What else? And ma'am, foreign goods were boycotted. Uh, And ma'am, shops were closed. shops were closed or do you remember that we did flowchart for this chapter? Good morning, ma'am. We did flowchart for this chapter. In the flowchart, I gave you that movement in towns, non-cooperation movement in towns, where two options were given. One was the beginning and one why it slowed down. In the beginning part, I gave you middle class participation. School, colleges, courts were boycotted, boycott of foreign clothes, picketing of the liquor shops, and because of this, the colonial economy was hampered, right? Ma'am, Was is this a harmed. sample paper? Yes, ma'am. This is the sample paper, bacha. This is the sample paper that we are doing right now. Okay. Okay, ma'am. हाँ. And we have to write these questions. बिल्कुल हम आपको देंगे, पहले डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ, फिर हम आपको लिखने के लिए भी बोलेंगे इनको. बेटा परेशान ना होइए कौन से आप. question पे? हाँ कौन से क्वेश्चन पे आप? बेटा हम अभी फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं. अब ये कह रहा है सेकंड वन, इट इज आस्किंग व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड. हमने क्लास में डिस्कस करा था ना. हाँ बताओ बताओ. हु विल टेल? हु विल टेल बेटा? मैम. हाँ बताओ. आर्यन बताओ. यस आर्यन बताओ. It involved exchanging and buying of product. ठीक है, पर टूरिज्म जो हम घूमने फिरने जाते हैं एज टूरिस्ट, तो कह रहा है कि टूरिज्म को हम ट्रेड क्यों कंसिडर कर सकते हैं? मैम हिंदी में बता दूं? हाँ बताओ. मैम टूरिज्म को इसलिए ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मैम जब हम बाहर जाते हैं या बाहर के हमारे यहाँ आते हैं तो मैम मतलब इससे ट्रेड होता है मैम. हम या वो मैम बहुत सारा सामान लेते हैं तो मैम इस वजह से मैम फायदा भी होता है और मैम कुछ नुकसान भी होता है मैम. इसीलिए मैम सामान का ही है सब. हाँ नहीं, ट्रेड का मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना? यस मैम. हाँ, तो व्हाई टूरिज्म इज कंसिडर्ड एज ट्रेड. भाई टूरिज्म को हम एक व्यापार की तरह दृष्टि से क्यों देखते हैं? अगर हिंदी में इसका क्वेश्चन बनेगा तो आप ये क्वेश्चन ही होगा कि भाई जो
टूरिज्म है उसको हम व्यापार मतलब ट्रेड की दृष्टि से क्यों देखते हैं, उसको क्यों कंसिडर करते हैं हम ऐसे? बताओ। मैम कुछ लोग मैम टूरिज्म की वजह से मैम क्या कहते हैं मैम ट्रेडिंग भी करते हैं मैम, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, ठीक है। और मैम आप हाँ देखो 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 बेटा, सीधी सी चीज है। कोई एनीवन एल्स हु वांट्स टू टेल द पॉइंट रिलेटेड टू दिस, टू व्हाई टूरिज्म इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेड? Any one of you? बताओ बेटा। हम्म, बोलो। बेटा इतने अच्छे से चैप्टर कराया था मैंने आप लोगों को, ये है आप लोग कैसे हो, कुछ याद नहीं रखते हो? हाँ, दिस इज सो डिसहार्टनिंग। आखिरी दिनों में पढ़ाया था ये चैप्टर आप लोगों को, आपने बोला मैम बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया कर लिया। हाँ, ये समझ में आया है? मैम जैसे लाइक फॉरेन टूरिस्ट आते हैं मैम हाँ इंडिया के अंदर, हाँ, तो मैम वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल करता है भाई। कल्चरल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। आप सीधी सी बात है, जब वो लोग यहाँ आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ के लोकल उससे को एक्सप्लोर करते हैं। आप देखो जहां जहां भी ये फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं, सबसे देखो टूरिज्म में सबसे ज्यादा फायदा जो है हमें फॉरेन टूरिस्ट से होता है। ठीक है, वो जब हमारे कंट्री में आते हैं तो उससे जो है हमें उससे हमें फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। मतलब अगर आप डाटा देखो तो आज की डेट में 21,000 21,828 करोड़ जो है वो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है ओनली थ्रू दी टूरिज्म। पता है आपको ये बात, ट्रेड में? तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही ना ये, राइट? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम इंटरनेशनल ट्रेड मैम उसमें कंसिडर हो सकता है टूरिज्म क्या चीज कंसिडर क्या एज अ चीज क्या ट्रेड? चीज अभ्युदय? मैम इंटरनेशनल ट्रेड हाँ बेटा, यही तो इंटरनेशनल ट्रेड की तो बात कर रहे हैं। मैम, तो इसमें मैम लिखा है ना एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स इट्स index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for the country. ये तो अलग हो गया। वो कह रहा है कि टूरिज्म कैसे जो है ट्रेड होता है वो बताना है आपको। आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कुछ नहीं बताना है। Ma'am, foreign tourist arrivals in the country witnessed as an increase of 11.8% during the year 2010 as हाँ against the year 2009, contributing 15 million foreign exchange in 2010. हाँ 5.78 million foreign tourists visited India in 2010. More than 15 million people same ही लिखा है directly हाँ engaged in the tourism industries. हाँ, ये दो चीजें आप लिख दो और इसके अंदर। भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, तो जरूरी थोड़ी 40 ही पहुंचाना है आपको। है ना? तो आप उसमें हमें एक चार्ट बना हुआ है, इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स फोर्थ बेस्ट हॉलिडे हेवन। हाँ, तो आप वो इसमें बताओ, चार्ट जो आप इसमें ये बताओगे, आप पहले टूरिज्म को डिफाइन कर दो कि टूरिज्म होता क्या है ना? कल्चरल, रिक्रिएशनल एंड कमर्शियल विजिट टू इंटरनल प्लेसेस इज नोन एज टूरिज्म। और फिर क्यों ये एक ट्रेड की तरह यूज, इसको हम एक ट्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसके जरिए जो है बाहर की कंट्रीज के लोग जो फॉरेनर्स होते हैं ना, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो अपने हमारे कंट्री में आते हैं एंड उनकी वजह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मैम प्लस नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है?
Anyone in the class who could tell national integration? हाँ, national integration बताओ. अरे मैम आप ही बता. अरे anybody in the class? मैम कॉमन थॉट्स होते हैं कम्युनिटी के हाँ अराउंड द कंट्री मैम, हाँ उसी भाई का नेशनल इंटीग्रेशन हाँ. बोलते हैं. नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है एज पर लिटिल मीनिंग अगर आप देखो तो भाई ग्रुप ऑफ सीनियर, एक काउंसिल होती है जिसमें कि ग्रुप ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक फिगर्स इन इंडिया लुक फॉर वेज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म. अच्छा नहीं तो काउंसिल हो गया. Awareness of a common identity amongst the citizen of the country. This is called as national integration, right? Awareness of common identity amongst the citizens of a country. अब इसमें क्या होता है कि भाई अलग अलग आप देखो हमारे कंट्री में कितने डिफरेंट कम्युनिटीज आर देयर, डिफरेंट कास्ट्स आर देयर, डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, कल्चर्स, regions में different languages are spoken, but all of them recognize the fact that they are just one because they belong to one country which is called as India, right? Right? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, coming to the third question. Who will tell this answer? Differentiate between one party and two party system. One party system is usually found in nations with authoritarian governments because because the government does not tolerate any opposition. And ma'am, two party system are in the United States. Ma'am, it has only two major parties which are competing for power. इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि वन पार्टी सिस्टम denotes that only one political party is there, and two party system denotes that there are only two political parties existing in the country. Right? Right? Yes. Yes, ma'am. Then for both you can give examples and then wind up your answer, because for less than 40 words you have to use, not more than 40. ठीक है, दोनों को जब आप बताओगे, वन पार्टी में आप बता दो चाइना, टू पार्टी में यू टेल अबाउट यूएसए यूके, इन दोनों कंट्रीज में जो है, और बोलो कि भाई वन पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड बिकॉज इसमें लोगों के पास चॉइस नहीं होती है, और टू पार्टी सिस्टम में ये बेटर होता है वन पार्टी सिस्टम से बिकॉज पीपल हैव चॉइस देयर, है ना. वन पार्टी सिस्टम से बेटर होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है ये, बट वन पार्टी सिस्टम से एटलीस्ट बेटर होता है बिकॉज people will have at least some choice to make during the elections. ठीक है Ma'am, and the most important role of Reserve Bank of India is that we are not doing this. Wait, we are not doing this right now. We are doing one party and two party system. Oh. Is this clear to everyone? Yes. Yes ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है. Abhyuday, now come to Reserve Bank of India. Yes, ma'am. Ma'am, the most important role of Reserve Bank of India is that all the rupees of India is मतलब मैम वो रिजर्व होके आते हैं मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसपे हम गवर्नर के साइन होते हैं. तभी अगर गवर्नर के साइन नहीं है मैम तो वो कंसिडर नहीं होगा नोट, वो कंसिडर नहीं होगा एज रुपी, राइट? यस मैम. ठीक है, और क्या रोल है इसका मैम? और मैम एक मिनट बता रहा हूँ. Ma'am, RBI sees that the bank give loans not just to profit-making business, but also to small cultivators. हाँ, दोबारा बोलो बेटा ये पॉइंट.
Ma'am, RBI sees that the bank give loans not just to profit-making business, but also to small cultivators. हाँ बिल्कुल, और बताओ। Ma'am, RBI supervises the functions of formal sources of loans. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और भी पॉइंट हम दे सकते हैं इसमें कुछ? RBI maintains the cash balance. वेरी गुड। Ma'am, the RBI monitor of bank in actually maintaining the minimum cash balance. हाँ, they maintain the minimum cash balance. They ensure maintenance of minimum cash balance in the other banks which are there. और रिजर्व बैंक अगर आप देखो, ये हमारे कंट्री में नेशनल करेंसी को इशू करता है रिजर्व बैंक, ठीक है। Yes. राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। मैम रिजर्व बैंक वाला पार्ट मैम कौन से चैप्टर का है? बेटा ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ओके है ना? मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का है मोस्ट प्रोबेबली, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. चलिए, अब आप आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। है ना? करो। बताओ भाई, डाटा टेबल देखा आप लोगों ने? Yes, ma'am. मैम बता हाँ, बताओ। It is from geography last manufacturing industries chapter. यस मैम, पर मैम मिल नहीं रहा है। बेटा ये आप अगर आप डाटा को देखोगे तो लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट डाटा दिया गया है, बुक में कहाँ से आ जाएगा? ये बात भी है हम्म, मैम, क्योंकि बुक वाले डाटा में हम 2014 तक दिया है। हाँ। अब आप इसमें तभी तो उन्होंने लेटेस्ट शेयर करा है। बताओ, कह रहा है कि बताओ एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019-20। 1920 में स्टील के प्रोडक्शन में कमी क्यों आई, उसका कोई कारण बताओ। और अगर सोचोगे मैम क्योंकि 19 मैम चाइना से ज्यादा गुड्स आने लगे प्लास्टिक के। 19-20 की बात कर रहे हैं भाई, सही से सोचो। हाँ मैम, नहीं मैम, लेकिन मैम 20 में बंद हुआ था मैम चाइना गुड्स का आना। मैम 19 में थोड़ी। हाँ, बताओ। बताओ। मैम एक मिनट मैम। हम्म, मैम रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गए। हम्म,
और मैम स्टील मैम महंगा हो गया। ठीक है भाई, वो सीधा सा कह रहा है कि इंडिया के स्टील प्रोडक्शन को के कम होने में क्या रीजंस है। Ma'am, NSP laid down key imperatives to ensure that the Indian steel sector is prepared to service the growing requirements of modern India and to promote a healthy, sustainable growth for the sector. हाँ And ma'am, publication from the various high-level bodies such as Niti Aayog publications. मैम फिर नई एज मैम नीड फॉर अ न्यू स्टील पॉलिसी। ये भी लिख सकते हो। इसमें इसमें सबसे सॉलिड रीजन आप ये बता सकते हो कि भाई 1920 में जो था, जो कंट्रीब्यूशन चाइना और रशिया ने जो है सबसे ज्यादा स्टील प्रोवाइड कराया, और इंडिया में डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि भाई सीधी सी बात थी कि डिमांड नहीं थी, वो मतलब नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, है ना। यस Anybody in the class who could tell this? No? बताओ भाई। बताओ। नो वन। मैम enable supply through best in class greenfield capacity addition। क्या चीज समझ नहीं आया अभी उधर। नहीं मैम वो पॉइंट इसका नहीं था। नहीं मैम वो पॉइंट गलत है। अच्छा ensure sufficient infrastructure and logistic capacity for the steel sector। ये हो सकता है क्या? क्या दोबारा पढ़ो जो आपने पढ़ा अभी। मैम ensure sufficient infrastructure and logistic capacity for the steel sector। हाँ ये हो सकता है। ये हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बताओ। Why is production and consumption of steel considered as an index of a country's development? बताओ। मैम इनका प्रोडक्शन मैम कई इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह किया गया। वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा है why is production and consumption of steel considered as an index of a country's development? हाँ
मैम एक्सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैम machine create various machine for ensuring country's growth। हाँ और मैम एक मिनट, बताओ अभ्युदय, अक्षर। Ma'am, the production and consumption of iron and steel reflects the level of industrialization and economic development of the country। Very good. Next point. Ma'am, all other industries depend on it for their machinery. It provides raw material for making industrial machinery, electrical machinery, defense equipments, bridge, dams, shops, houses, etc. Very good. What else? Which would be the best point that you will write in the answer, because it is asking you not to exceed more than 40 words. So the first point that you said, no, that it reflects the level of industrialization, along with the second point that you had read. Huh? Steel production is the backbone of any country's economy, हाँ since बिल्कुल। it is the basis for the development of the nation। हाँ वेरी गुड। मैम और मैम सारे मैम जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो मैम आयरन और स्टील पे ही की डिपेंड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और पे डिपेंड कर रहे करते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने ये बात। ठीक है, हाँ तो सही है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है चलिए, those who are there in the class, beta all the others, those who are there, please raise your hands. Those who are there in the class, raise your hands. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 are there in the class, right? So take the screenshot and send your answers for the first 5 questions after the classes. Will it be okay, class? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. I have shared the screen here. Kindly take the screenshot. Done। Done? And if you could write answer for the first question and send it on the class group, you have 2 minutes to write. ये मैम बाद में ही भेजेंगे मैम। बाद में भेजेंगे? मैम बाद में ही भेज। ठीक है। मैम सुबह मैम लिखने की मैम हिम्मत नहीं हो रही। नहीं ऐसा नहीं है, 10th के बच्चों ने तो लिख के भेजा है भाई, हमने तो उनको लिखवाया सुबह। अरे मैम हम 10th A वाले मैम, तो कहाँ 10th वीक। 10th A वाले हो तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए हाँ to prove everyone wrong. मैम मैं लिखता हूँ भी मैम, जितने भी आपने क्वेश्चन अभी करवाए मैम लिखता हूँ अभी दूँ, लेकिन मैम अभी मन नहीं कर रहा है। Okay. कोई दिक्कत नहीं। बेटा, will it be okay if you send just one answer in the group after writing it? हाँ मैम ये ठीक है। Yes, ma'am. मैम कोई भी लिख दें, मैम कोई भी लिख, कोई सा भी एक लिख दो, कोई सा भी एक, चलो ऐसा कर लो, कोई सा भी एक लिख दो, है ना? मैम ज्योग्राफी का ही लिख दे। ओके हाँ